Good morning, student. Today I will teach you physical education unit 8. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में. Human physiology is the study of all the system of human body and their mutual relationship. In fact, through human anatomy, we come to know about the mutual function of all the organs of our body. For example, as a result of human physiology, we get the knowledge of function of human heart. Human physiology can be defined as a science dealing with the study of human body function. Meaning and definition of kinesiology. The word kinesiology is derived from the Greek word kinesis means motion and logos means to discourse or to study. Thus, kinesiology means the study of motion. Kinesiology is a branch of physiology that studies mechanics and anatomy in relationship to human movement. Kinesiology addresses physiology, biomechanical and physiological mechanisms of movement. Without appropriate knowledge of anatomy and physiology, we cannot understand kinesiology. The following definition can help to understand the meaning of kinesiology. मानव शरीर विज्ञान का अर्थ और परिभाषा. मानव शरीर विज्ञान मानव शरीर की सभी प्रणालियों और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन है. वास्तव में मानव शरीर संरचना के माध्यम से हमें अपने शरीर के सभी अंगों के पारस्परिक कार्यों के बारे में पता चलता है. उदाहरण के लिए, मानव शरीर क्रिया विज्ञान के परिणाम स्वरूप हमें मानव हृदय के कार्यों का ज्ञान प्राप्त होता है. मानव शरीर क्रिया विज्ञान को मानव शरीर क्रिया के अध्ययन से संबंधित विज्ञान के रूप से परिभाषित किया जा सकता है. किनेसियोलॉजी का अर्थ और परिभाषा. किनेसियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द काइंस से हुई है, जिसका अर्थ है गति, और जोगोस का अर्थ है प्रवचन करना या अध्ययन करना. इस प्रकार किनेसियोलॉजी का अर्थ है गति का अध्ययन करना. किनेसियोलॉजी शरीर विज्ञान की एक शाखा है जो मानव आंदोलन के संबंध में यांत्रिका और शरीर रचना का अध्ययन करती है. किनेसियोलॉजी आंदोलन के शारीरिक, बायोमैकेनिकल और मनोवैज्ञानिक तंत्र को संबोधित करती है. शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान के उचित ज्ञान के बिना हम किनेसियोलॉजी नहीं समझ सकते. निम्नलिखित परिभाषाएं किनेसियोलॉजी के अर्थ को समझने में मदद कर सकती है. Kinesiology is a science dealing with the interrelationship of physiology, process and anatomy of the human body with respect to movement. American Kinesiology Association defines kinesiology as the academic discipline which involves the study of physical activity and its impact on health, society and quality of life. Kinesiology can be defined as the science that deals with or gains system of information related to motion. It is the study of scientific principles of movement to learn about motor performance. So, study of kinesiology is the constitute part of the learning experience of student of physical education training and athletes at coaches. In fact, kinesiology comprises subdisciplines of exercise physiology, biomechanics, sports and exercise physiology, athletic training, sports medicine, sports administration, physical education, fitness and health promotion. The mutual relationship of human anatomy, human physiology and kinesiology is close as well as deep. It is difficult to study them separately because these two disciplines are interrelated. In the absence of one discipline, the existence of other cannot be imagined because we cannot understand the function of any organ until we understand the structure of that organ. So, owing to such mutual relationship, the human body perform various functions like a machine. इसका मतलब ये है जो किनेसियोलॉजी है वो आंदोलन के संबंध में शारीरिक प्रक्रियाओं और मानव शरीर की शारीरिक रचना के अंत संबंध से निपटने वाला विज्ञान है. अमेरिकन किनेसियोलॉजी एसोसिएशन किनेसियोलॉजी को परिभाषित करता है शैक्षणिक अनुशासन जिसमें शारीरिक गतिविधियों और स्वास्थ्य, समाज और जीवन की गुणवत्ता पर इसके प्रभाव का अध्ययन शामिल है.
किनेसियोलॉजी को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो गति से संबंधित जानकारी की संगठित प्रणाली से संबंधित है। यह मोटर प्रदर्शनों के बारे में जानने के लिए आंदोलन के वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन है। तो किनेसियोलॉजी का अध्ययन शारीरिक शिक्षा, प्रशिक्षण, एथलीटों और कोच के छात्रों के सीखने के अनुभव का एक घटक है। वास्तव में जो किनेसियोलॉजी में व्यायाम, शरीर विज्ञान, बायोमैकेनिक्स, खेल और व्यायाम, मनोवैज्ञानिक, एथलेटिक प्रशिक्षण, खेल चिकित्सा, खेल प्रशासन, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस और स्वास्थ्य संवर्धन के उपविषय शामिल हैं। मानव शरीर रचना विज्ञान, मानव शरीर क्रिया विज्ञान और किनेसियोलॉजी का आपसी संबंध घनिष्ठ होने के साथ साथ गहरा भी है। इनका अलग अलग अध्ययन करना कठिन है क्योंकि ये दो विषय परस्पर जुड़े हुए हैं। एक अनुशासन की अनुपस्थिति में दूसरे के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि हम किसी भी अंग के कार्य को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक हम उस अंग की संरचना को नहीं समझते हैं। इसलिए इस तरह के पारस्परिक संबंधों के कारण मानव शरीर एक मशीन की तरह विभिन्न कार्य करता है। Importance of study of anatomy, physiology, kinesiology in physical education. The importance of anatomy, physiology and kinesiology mentioned below. Anatomy provides the knowledge of structure of various organs. Human anatomy provides the detailed knowledge of the structure of various organs of body. We get the knowledge of structure, shape, size, location and weight of organs of all the system of our body. We come to know about the length of various organs such as the length, size and shape of the bone. With the help of anatomy, we get the knowledge of percentage of wild fibers and red fibers present in an individual. As a result of such knowledge, the teacher and coach working in the field of physical education and sports may easily select the suitable sports according to the trends of students. For example, weightlifting is more appropriate for short statured students in comparison to volleyball and basketball. In the same way, the student who have more percentage of white fibers, i.e. fast twitch fibers in comparison to red fiber, i.e. slow twitch fibers, can perform better in sprinting events instead of endurance events. इसका मतलब ये है कि जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी और किनेसियोलॉजी का जो अध्ययन है वह शारीरिक शिक्षा पर मतलब कितना महत्वपूर्ण है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। शरीर विज्ञान और किनेसियोलॉजी का महत्व अब हम आपको बताते हैं। शरीर रचना विज्ञान विभिन्न अंगों की संरचना का ज्ञान प्रदान करता है। मानव शरीर रचना विज्ञान शरीर के विभिन्न अंगों की संरचना का विस्तृत ज्ञान प्रदान करता है। हम अपने शरीर की सभी प्रणालियों के अंगों की संरचना, आकार, स्थान और वजन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमें विभिन्न अंगों की लंबाई के बारे में पता चलता है, जैसे कि वे की लंबाई, आकार और हड्डियों का आकार। शरीर रचना विज्ञान की मदद से हम एक व्यक्ति में मौजूद सफ़ेद तंतुओं और लाल तंतुओं के प्रतिशत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह के ज्ञान के परिणाम स्वरूप शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक और प्रशिक्षण छात्रों के लक्षणों के अनुसार आसानी से उपयुक्त खेलों का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वॉलीबॉल और बास्केटबॉल की तुलना में लघु मूर्ति वाले छात्रों के लिए भारोत्तोलन अधिक उपयुक्त है। उसी तरह जिन छात्रों के पास सफ़ेद फाइबर का प्रतिशत अधिक है, यानी लाल फाइबर की तुलना में तेज़ी से चिकने तंतुओं, धीमी गति से चिकने फाइबर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जो हमारे चिकने फाइबर होते हैं वो हमें प्रदर्शन करने मतलब हमारे गेम की परफॉर्मेंस में हमारी सहायता करते हैं। धीरज की घटनाओं के बजाय स्प्रिंटिंग घटनाओं में, मतलब जो हमारी स्प्रिंटिंग होती है इवेंट्स इंस्टेड टू एंड्योरेंस इवेंट्स में हमारी मदद करते हैं। उसके बाद हमारा आता है फिजियोलॉजी प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। फिजियोलॉजी प्रोवाइड डिटेल्ड नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी. We get the knowledge of capacities or capabilities of cardiovascular system with the help of physiology. We also get a detailed knowledge about the functions of nervous system, muscular system, excretory system, etc. So for imparting
physical training. A physical trainer should have proper knowledge of physiology. Without having the knowledge of the function of various systems, the training imparted by a physical education teacher or coach may be harmful for the students. Useful in the prevention sports injuries. Sports injuries such as sprain, strain, contusion, fracture, dislocation of joints, etc., are a common phenomenon in the field of games and sports. Generally, it is seen that every sports person falls prey to some of other sports injury during his/her sports career. The proper knowledge of human anatomy, physiology, and kinesiology can prevent sports injuries up to some extent during sports training and competition. That is why protective equipment in games and sports are used to provide protection to the soft and delicate organs. In fact, the appropriate knowledge about the mutual function of bones, muscles, tendons, and ligaments is really helpful in the prevention of sports injuries. फिजियोलॉजी जो होती है विभिन्न अंगों के कार्यों के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करती है, जैसे कि शरीर विज्ञान शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों के बारे में विस्तृत ज्ञान प्रदान करती है। हम शरीर क्रिया विज्ञान की सहायता से हृदय प्रणाली की क्षमताओं का या उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम तांत्रिका तंत्र, मांसपेशियों की प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली आदि के कार्यों के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक शारीरिक प्रशिक्षक को शरीर विज्ञान का उचित ज्ञान होना चाहिए। विभिन्न प्रणालियों के कार्यों का ज्ञान होने के बिना शारीरिक शिक्षा शिक्षक या प्रशिक्षक द्वारा प्रदान किया गया प्रशिक्षण छात्रों के लिए हानिकारक हो सकता है। खेल चोटों की रोकथाम में उपयोगी। खेल की चोटें जैसे कि मोच, तनाव, भ्रम, फ्रैक्चर, जोड़ों की अव्यवस्था आदि खेल और खेल के क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि प्रत्येक खिलाड़ी अपने खेल करियर के दौरान किसी न किसी खेल की चोट का शिकार होता है। मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान और किनेसियोलॉजी के उचित ज्ञान से खेल प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के दौरान कुछ हद तक खेल की चोटों को रोका जा सकता है। इसलिए खेल और खेल के सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग नरम और नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। वास्तव में हड्डियां, मांसपेशियां, टेंडन्स और स्नायु बंधन के पारस्परिक कार्यों के बारे में उचित ज्ञान वास्तव में खेल की चोटों को रोकथाम में सहायक होता है।